So see now the next one is linear equation. तो टर्म है आपका लीनियर इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. सिंपल, हमें पता है लीनियर टर्म कहाँ पे यूज होता है. लीनियर टर्म स्टैंड्स फॉर डिग्री 1. सो वेदर इट्स लीनियर पॉलिनोमियल तो डिग्री 1, इट्स अ लीनियर इक्वेशन डिग्री 1. तो लीनियर इक्वेशन का नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए इट हैज टू बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. नॉन पॉलिनोमियल टर्म कोई भी यहां संभव नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 3x minus 4 is equal to 2x plus 1, so that's a linear polynomial. ठीक है, इन वन वेरिएबल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का. और दूसरा एग्जाम्पल यदि हम दें, अगर हम यहाँ पे लिख दें x plus 2y plus 3 is equal to 3x minus 7. Now there are two variables x and y, so it's a linear polynomial in two variable in both the cases. It has to be a polynomial primarily and of degree 1. ये आप याद रखिएगा. तो सिंपल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इक्वेशन आप समझ गए, टर्म लीनियर आपको पहले से ही पता था, वेरिएबल्स आप पहले से ही जानते हैं. तो ये आपका चैप्टर हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए. सो वी हैव डिफाइंड द टर्म इक्वेशन, वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन एक्सप्रेशन, वी हैव डिफाइंड द टर्म्स लाइक अलजेब्राइक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. नाउ so now let's move ahead in the topic of this chapter. So now let us define the terms equation and its solution. तो देखिए, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए इक्वेशन का स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट हो, जिसके लिए इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो, वो वेरिएबल की वैल्यूज इक्वेशन के सॉल्यूशन या इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती हैं. So the statement is the value of variables that satisfy the given equation is called its solution. If I take up an example here, अगर हमने आपसे कहा x square minus let's say 5x plus 6 equal to 0. Now if I ask you to check whether x is equal to 1 is a solution or not, तो आप क्या करेंगे, आप x को यहां पे 1 रख देंगे. सो पुट x is equal to 1 in the equation. So what do you get? 1 plus 6 7 minus 5 is 2 and this is equal to 0. Now that's not possible. So what does that mean? That means this is not a solution of the equation. Now if I say check whether x is equal to 2 is a solution or not, तो आपने put x is equal to 2, आपने 2 रख दिया x की जगह in the equation, and then you have 4 plus 6 10, 10 minus 10 is equal to 0, so 0 is equal to 0. Now that's what we call that x is equal to 2 is satisfying the equation statement. तो यहां पे जिस वैल्यू के लिए LHS RHS बराबर आ जाएं, उसके लिए हम कहते हैं कि इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, it is not satisfying the statement LHS is equal to RHS, hence it is a solution. तो ये solution है, ये solution नहीं था. Likewise if you want to check, you can check it for x is equal to 3 also. So put x is equal to 3 here. तो जब 3 रखा तो 9 plus 6 15 minus 15 is equal to 0. So that's again a solution of the equation. तो ये वापस से आपका equation का solution है. So these two are the solution of the equation, whereas this was not the solution of the equation. तो बहुत ही सिंपल है. यदि आपसे कहा जाए कि भैया चेक कर दो कि ये जो चर संख्या है इसका किस मान या ये मान जो दिया हुआ है ये उसका सॉल्यूशन समीकरण का हल है या नहीं है, तो आप इस तरह से उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, so this is how we define solution of the equation. Now let's look at few examples based on this like concept of equation as a solution. Now moving to the example here, पहला क्वेश्चन है आपका, we have to verify whether x is equal to 2 is a solution of, so ये हमें वेरीफाई करना है for the equation x cube minus 3x minus 2 equal to 0, and as we have already seen now, आपको चेक करना है तो आप करेंगे क्या, you put x is equal to 3 here. So in the equation of the in the statement of the equation, जहां जहां पे आप x है वहां पे आपको जो वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है वो आप वहां पे रख दें. तो you put x is equal to 2 here, x की जगह 2 रख दें. तो देखिए क्या आया, 8 minus 6 minus 2 equal to 0. Now these get cancelled, so 0 is equal to 0, so that's
दैट्स व्हाट वी से, इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, बिकॉज जब आपने x को 2 रखा LHS RHS में तो आपका LHS और RHS इक्वल ही आए. So it is satisfying the equations, hence this is a solution of the equation. तो ये जो given equation है इसका ये solution है बच्चों. ठीक है पहला. अब सेकंड पे आते हैं, वेरीफाई वेदर q इज इक्वल टू -1. तो यहां पे हमें वी हैव टू चेक फॉर q इज इक्वल टू -1. और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आपकी, सो लेट्स गो बैक एंड सी, 5 4 3 2 1 2. ठीक है, तो सारे पॉसिबल टर्म्स हैं q रेज टू द पावर 5 प्लस q रेज टू द पावर 4 प्लस q रेज टू द पावर 3 प्लस स्क्वायर प्लस q प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ऑल पॉसिबल टर्म्स आर देयर. तो सारे पॉसिबल टर्म्स हैं यहाँ पे. तो इनके लिए हमें चेक करना है कि भैया है कि नहीं है. तो पुट x q इज इक्वल टू -1 इन द स्टेटमेंट हियर. आप यहाँ पे रख दें तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 2. नाउ आर द इक्वल, तो क्या इन दोनों के लिए बराबर आए? तो ये तो 1 इक्वल टू 0. नो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये संभव नहीं है. सो दैट मीन्स दैट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो ये सोल्यूशन नहीं है बच्चों. तो ये दो एग्जाम्पल हो गए बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन एन इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन. So now let's look at the solution of linear equation in two variables. तो जो चैप्टर है उस पर आते हैं और समझते हैं कि पहले सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. So we have a standard form of linear equation on two variables and that standard form is ax plus by plus c equal to 0. तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव बोथ द वेरिएबल्स टर्म्स लाइक x एंड y एंड अ कांस्टेंट टर्म. तो एट मोस्ट 3 टर्म्स, हमने एग्जैक्टली 3 टर्म्स नहीं कहा, एट मोस्ट 3 टर्म्स. सो दैट्स योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब आप ये समझिएगा कि जिस इक्वेशन को आप इससे सी, व्हाई डू वी गो थ्रू द स्टैंडर्ड इक्वेशन हियर इन एनी केस. लाइक क्वाड्रेटिक हमने आपको जब पॉलिनोमियल पढ़ाया होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया होगा, या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पढ़ाई होगी ax² प्लस bx प्लस c. स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बताया होगा. तो व्हाई वी गो थ्रू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म? द रीजन इज यदि आपको ये वेरीफाई चेक करना हो कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो तरीका सिंपल है. आप क्या करेंगे, आप यहां पे जो भी गिवन इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर करेंगे यदि कंपेयर कर सके. और कंपेयर करने का मतलब टू गेट द वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी. तो इफ यू कैन गेट द वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी देन डेफिनेटली दैट गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, इफ आई से 2x minus y plus 3 equal to 0. So is it a linear equation in two variables? You will say definitely yes. और रीजन तो भले ही आपको ना भी पता हो तो भी आप कह सकते हैं हाँ तो तीनों ही टर्म है तो हाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो लेकिन अगर हम आपसे कहें a कितना, तो आप कहेंगे x का कोफिशिएंट 2, b कितना, कोफिशिएंट ऑफ y which is -1 and c is how much? So c is 3, the constant term. So that's okay. बट यदि हम आपसे कहें कि भैया ये बता दो कि ये जो इक्वेशन है इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अब आप क्या कहेंगे? आपको नाउ यू मे गेट अ बिट कंफ्यूज. तो यहां पे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है दैट इफ यू कैन कंपेयर एन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन दैट इक्वेशन इज डेफिनेटली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो अब आप लुक एट दिस एंड दिस. इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ a, can't you say that it's 3? Definitely you will say yes, it's 3, coefficient of x. Now if I ask you to get value of b here, तो क्या b का कोफिशिएंट या b की वैल्यू नहीं बता पाएंगे? तो आंसर इज बिल्कुल बता पाएंगे. भाई y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तभी तो y का टर्म नहीं है, तो आप बता पाए. क्या c नहीं पता? तो c भी बता. तो अब आप तीनों ही वैल्यू बता पा रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट्स अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ध्यान से समझिएगा. तो 3x आपको देखने में ये वन वेरिएबल की इक्वेशन दिख रही होगी, बट इफ यू आर टॉकिंग इन रेफरेंस टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो आप इसे दो वेरिएबल की इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं और देख पाएंगे. लाइकवाइज इफ आई राइट एन इक्वेशन हियर मे बी 2y minus 7 equal to 0. फिर से आप देखें तो a कितना, कोफिशिएंट ऑफ x which is 0.
तो b कितना कोफिशिएंट ऑफ y विच इज 2, c कितना, सो इट्स माइनस टाइम्स 7, तो दैट्स योर c. सो अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो वापस से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अब आप एक काउंटर एग्जांपल यदि सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा फिर कोई फ्रेम हो सकता है जो उसको हम इससे कंपेयर ना कर सके, तो देखिए हमने लिख दिया, मान लीजिए लिखा 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. अब बताइए क्या इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहां पे y स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है. भाई देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आप कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसमें आप नहीं कह सकते कि हाँ कि y स्क्वायर के टर्म का कोफिशिएंट 0 कर देंगे, और कर भी देंगे तो 0 क्या 3 के बराबर हो जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं. तो यहां से a निकल आएगा 2, क्या हम b निकाल पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे. सो दैट्स डेफिनेटली नॉट कंपेरेबल विद द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये हो ही नहीं सकती लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसका एक रीजन आप समझ भी रहे हो कि ये सेकेंड डिग्री का टर्म है. या हम यहां पे कह दें कि भैया 3 वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ कैन वी कंपेयर इट विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो आंसर इज डेफिनेटली नॉट, बिकॉज चलिए आपने a को 2 कह दिया, b को 3 कह दिया, तो z का टर्म है ही कहां यहां पे जो आप कंपेयर कर पाए. और यदि आप यहां पे कह दोगे कि z का टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट 0, तो क्या 0 माइनस 4 के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं. तो दैट्स कांट बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो आप ध्यान से समझिए, ये इक्वेशन जो आपको सिंगल वेरिएबल की दिख रही है, दिस कैन बी ट्रीटेड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ यू विश टू ट्रीट इट. और जब अब आप 9th क्लास में हैं, 9th ऑनवर्ड्स, वंस यू नो the meaning of linear equation in two variables, the solutions of linear equation in two variables, the geometrical interpretation of linear equation in two variables, तो अब आपके लिए चाहे सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो चाहे दो वेरिएबल की इक्वेशन हो, दोनों ही केस में आप उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही कहेंगे. ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए. ओके, सो दैट्स योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये तो पूरा इसका समझने का समझाने का तरीका हो गया. अब देखिए, तो सिंपल है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सिंस देयर आर टू variables here. So if you have to talk about solution of this linear equation in two variable, तो हमें x और y दोनों के वैल्यू की बात करनी होगी. So those values of variables x and y will satisfy the equation. We know, ultimately we know what do we mean by solution of the equation. तो हमें पता है, तो वो वैल्यूज वेरिएबल या वेरिएबल्स की जो इक्वेशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे वो उसकी सोल्यूशन कहलाते हैं. दो वेरिएबल हैं तो हम x और y दोनों की वैल्यूज के लिए बात करेंगे. तो x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर दे, सो दैट वी कॉल द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट अस लुक एट फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स सोल्यूशन. Now first question is find 5 different solutions of this equation. तो इस क्वेश्चन का पर्पस है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया गया और इसके देखिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं. रीजन बहुत सिंपल है, आप x की वैल्यू फिक्स कर लीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी. तो x की कितनी वैल्यू आप रख सकते हैं? आप बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको 5 डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट पुटिंग फ्यू वैल्यूज फॉर x. तो पुट x इज इक्वल टू 0. तो 3y कितना हो गया? 12. सो y इज इक्वल टू 4. तो अब यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4. ये आ गया पहला सोल्यूशन, x 0 y 4. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 में भी, तब कितना हो जाएगा? तो दिस इज 4 प्लस 3y इक्वल टू 12. तो y हो गया आपका 8/3. तो अब आप कहेंगे भैया सोल्यूशन है अपना x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8/3. So this is another solution. So likewise you can get as many solutions as you wish. Put x is, अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो y को डिफाइन कर सकते हैं. आप कहिए चलिए ठीक है y को 0 रखते हैं, y 0. तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 12, x हो गया 3. So therefore x is equal to 3 and y is equal to 0 is a solution. तो ये एक सोल्यूशन आ गया, 3 हो गए. अब इसी तरह से आप जितने सोल्यूशन निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं. मर्जी आए तो आप y को, मान लीजिए हमने कहा y 1/3 है,
चॉइस आपकी है, आप इंटीग्रल वैल्यू दें, आप फ्रैक्शन वैल्यू एक्स और वाई में से किसी को असाइन करें, आप निगेटिव वैल्यू असाइन करें, आप पॉजिटिव वैल्यू असाइन करें, आप रैशनल वैल्यू असाइन करें, आप इरैशनल वैल्यू असाइन करें, चॉइस इज योर्स। हाँ, ये यदि आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी वैल्यू असाइन करते वक्त कि कौन सी वैल्यू आपकी जो फर्दर आपको जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो सरल टाइप की वैल्यू आए, इजी वैल्यू आए, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने x को y को यहाँ पे 1/3 रख दिया, तो ये 1/3 इंटू 3 1 हो गया, तो 4x हो गया आपका 11, तो x हो गया 11/4। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 11/4, y इज इक्वल टू 1/3 इज अ सोल्यूशन। ये एक सोल्यूशन है। तो 4 सोल्यूशन निकाल लिए। अब एज आई सेड आप जितने मर्जी है उतने सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम यू आर फाइंडिंग द सोल्यूशन यू नीड टू राइट इट सेपरेटली। आपको एक बॉक्स में लिख देना चाहिए कि ये सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू वॉट एवर, वाई इज इक्वल टू वॉट एवर, सो दैट इज अ सोल्यूशन। Okay, so this is how you can find as many solutions of a linear equation in two variables as you wish. आपको जितनी इच्छा हो उतने solution निकाल सकते हैं। Method हमने आपको बता दिया है बच्चों। Now let's move to the next example. Now coming to the second example, यहाँ पे statement है when 3 times a number is divided by another number, it gives 2 as quotient and leaves 7 as remainder. Form linear equation in two variables and find its 3 different solution. ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं let dividend be y and divisor be x। तो हमने x और y डिवाइजर और डिविडेंड मान लिए हैं। तो अब स्टेटमेंट देखिए, 3 टाइम्स अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, तो 3 टाइम्स द y, तो डिविडेंड नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पे जो डिविडेंड है वो यहाँ पे 3y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स द नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, तो वो हमने x मान लिया, तो ये हो गया आपको। सो दिस इम्प्लाई 3y dividend divided by x divisor leaves 2 as quotient, so it gives 2 as quotient and leaves 7 as remainder। ये आ गया आपका linear equation in two variables, so 3y is equal to 2x plus 7। ये आ गई आपकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब as we know we can find infinite many solution for this linear equation in two variable just by assigning value to one of the variable। तो शुरू कर लेते हैं। x को मान लीजिए आपने कहा भैया 1 रख लिया, तो y हो गया आपका 9/3, 3, so therefore x is equal to 1, y is equal to 3 is the solution। आप चाहें तो x को 0 रख लें तो y हो जाएगा 7/3, आप चाहें तो x को -2 रख लें तो y हो जाएगा 1, आप चाहें x को 3 रख लें या 4 रख लें तो y हो जाएगा 4 रखेंगे तो 8 + 7 15, y हो जाएगा 5। फिर से as many solutions as you wish you can find for this equation। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे और एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों। Now here we have to check whether x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of this equation or not। तो पहले में यदि हम चेक करें तो ये 5y है, so this is your 5y here। So first one is like 2x plus 5y is equal to 9। तो अब put x is equal to 2, y is equal to 1 in this statement। What do we get here? तो क्या मिलेगा? तो ये हमें मिल जाएगा 2 रख दिया तो 4, y रख दिया तो 5, 1 is equal to 9, so 9 is equal to 9, hence x is equal to 2 and y is equal to 1 satisfy the equation, so this imply x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution, is a solution of the equation। तो ये है तरीका। सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x की जगह 2y की जगह 1 रखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो ये भी आप देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, तो 3 इज इक्वल टू 3, सो दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो हेंस हियर अगेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। तो ये भी हो गया। अब आते हैं थर्ड केस में 3x - 5 -
y माइनस 5। तो थर्ड है आपका 3x माइनस वाई माइनस 5। Now again substitute x by 2 and y by 1. So 6 minus 1 minus 5. So that's again a solution. 0 equal to 0. So again you will say, so therefore x is equal to 2, y is equal to 1 is our solution. Is our solution of this equation, and that's it. तो ये हो गया। देखिए सिंपल है ये चैप्टर, छोटा सा सिंपल सा, बट वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक फर्दर व्हाट यू विल बी डूइंग। 10th क्लास में आपसे इसी से रिलेटेड एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझना अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर विल बी यूजिंग इट क्वाइट ऑफन इन सेवरल अदर चैप्टर्स ऑल्सो। तो चलिए लेट्स मूव अहेड देन। तो मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बता दिया गया कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p हियर। तो पहला है पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। चूंकि ये सोल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए इन द इक्वेशन px प्लस py माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे आ जाएगा p प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया पहले का आंसर। तो p ही चाहिए, तो p आ गया आपका 1। नाउ द सिमिलर थिंग वी नीड टू डू इन द सेकंड वन। तो फिर से आप x की जगह 1, y की जगह 1 रख देंगे। तो 2p माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस p प्लस टाइम्स p प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 3p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2p माइनस p 5p तो 4p हो जाएगा। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 9 इक्वल टू 0। तो p हो गया आपका 9/4। सो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ p हियर इन सेकंड केस। थर्ड केस है p स्क्वायर x माइनस 5p y प्लस 6। तो यहां पे आप x की जगह 1 रखेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे माइनस 5p प्लस 6। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव ऑलरेडी सीन सच टाइप ऑफ इक्वेशन इन अवर प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट आपको पता है, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 6 such that their sum is the coefficient of the middle term. तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 it comes out to be 6 and their sum comes out to be माइनस 5। तो आप इसे माइनस 3p माइनस 2p की तरह से ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। Once you do it, so you get here, you take p common, so it's p minus 3, you take minus 2 common, so it's p minus 3 equal to 0. So therefore, the factors are p minus 3 into p minus 2 equal to 0. I think we have already discussed this part कि यदि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट शून्य है तो उनमें से कम एक 0 होगा ही होगा। So therefore, you will say either p minus 3 has to be equal to 0. तो यहां से इंप्लाइड है p इज इक्वल टू 3 और p माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां से इंप्लाइड है p इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपके यहां पे वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस एग्जाम्पल वेयर यू आर गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और जो अननोन था उसका मान आपको निकालना था, उसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सो दैट वाज द डिस्कशन ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम द अलजेब्राइक पर्सपेक्टिव। अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से मतलब कैसे इसे सॉल्व करना है, कितने सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का क्या अभिप्राय है यहाँ पे, इक्वेशन एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। सो दैट्स ऑल वी डिस्कस। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस इट्स फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन पे। यदि हम उसे ड्रॉ करना चाहें तो हम उसे कैसे, वो कौन सा फिगर, कौन सा शेप हमें देगा। तो चलिए लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस दैट पोर्शन ऑफ द चैप्टर।